Hello students, welcome to 4Pi Academy. This is Monica Srivastava. So I'm again here in front of you guys with my new lecture of classical mechanics. This is our lecture number 3 and we are really learning some interesting things from the starting. Now in this lecture, we'll talk about Lagrange's equations and Lagrangian mechanics. Here on your screen, you can see a simple Lagrange's equation which can be written as d over dt del L over del q dot equals to del L over del q dot, where qi or q equals to x, y and z. And by simplifying more, we are getting this result. We will learn it in this video that how to deduce the equation of motion and how to make Lagrange's equation for a particle system or a type of group of particles. Okay, so this will be the outline for today's lecture. First of all, we'll memorize the rules for the formation of Lagrangian, then why Lagrangian approach is better over Newtonian mechanics, why we are using Lagrangian rather than Newtonian, and we'll do some examples of Lagrange's equations, and there will be some practice questions also. So let's start. Now when we go through the history of Lagrange's and Lagrange's equations, हमें ये पता चलता है कि Lagrange's equations जिनके नेम पर है, they was Joseph Louis Lagrange. He was a scientist, a mathematician, and he contributed simply important terms or equations in mathematics like calculus of variations, calculus of probabilities, propagation of sound, vibrating strings, integration of differential equations, orbits, number theories and so on. So this is the brief history of Sir Joseph Louis Lagrange, who gave the Lagrange's equations. Now हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम क्यों न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं, यूज क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों लैग्रेंजियन मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं. सो व्हाई वी आर गिविंग लैग्रेंजेस मोर इंपॉर्टेंस. सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, मोशन इज गिवन एंड वी आर डिड्यूसिंग फोर्सेस. लाइक अ डायग्राम इज शोन here on your screen. It is a rotating launcher. यहां से ये एक पाइवट के थ्रू फिक्स है और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. सपोज कीजिए ये वो पार्टिकल है जिसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन या फोर्सेस डिड्यूस करने हैं. तो ये पार्टिकल इस तरह की एक स्लाइड पर रखा हुआ है एंड इट इज रोटेटिंग. सो दिस इज द सिस्टम. जब हम इस प्रोजेक्टाइल का, इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्रोजेक्टाइल. The gravitational forces are applying. So if we are considering the mass m, then the force will be, or weight will be, F equals to mg, and some normalized force are also there. So this is the example of Newtonian mechanics, that motion is given and we are deducing forces. Now when we use Lagrangian, what we are doing, forces are given and we are solving the motion, we are deducing the equation of motion. जैसे कि आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, this is another particle or object of mass m2. When we are applying force to m1 and it both these are attached, and due to that the force is also applying on m2. So when x1 is the displacement of m1, so x2 will be the displacement of m2. So this is a spring mass system
and for this system we are solving the equation of motion. So when we are plotting the graph between x, means displacement, and time, we are getting some results. So what we are doing in Lagrange's mechanics, we are solving the equation of motions or deducing the paths of motion of the particles or the system of particles. So it is just great for simple systems. That is why Lagrangian approach is more suitable. Now we are really talk about real systems in mechanics, in physics. So what about real systems? In real systems there is complexity, like vectorial equations are there. They are difficult to manage. Obviously there are various types of constants what holds the system together. No general procedure is there to solve these systems. Now what Lagrangian does for these types of real systems, Lagrange's provides avoiding some constants. Lagrange's क्या करता है, कुछ constants को हटा देता है, and equations are presented in a standard form. और सभी इक्वेशंस को Lagrange's में जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिलती है. तो ये हमें Lagrangian अप्रोच से फायदा होता है. नाउ there is a big and important picture of Lagrangian mechanics. Big picture is that it uses kinetic and potential energy to solve for the motion. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं. ऑब्वियसली L इज इक्वल्स टू T माइनस V. वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, वी नो दैट. Okay, so we use kinetic and potential energy to solve for the motion, and no need to solve for accelerations, do need to solve for inertial velocities. So this is a big picture and important picture of Lagrange's approach. Now here is the definition of Lagrangian function. We know that L equals to T minus V, kinetic energy minus potential energies. And when we are doing Lagrange's equation, we are solving for conservative systems, we are getting these types of results, which is d over dt del L over del Q dot minus del L over del Q equals to 0. Why these results are in differential equations? Because these describe the equation of motion of the system in a changing way, means the motion is going on, motion is happening for the particle. So there are some key points to note down. Newtonian approach requires that you find accelerations in all three directions. न्यूटोनियन अप्रोच में हमें क्या चाहिए कि हमें सभी थ्री डायरेक्शंस, इफ वी आर कंसीडरिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, हमें सभी तीन डायरेक्शंस के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है और इक्वेट करना होता है F इक्वल्स टू ma के लिए. देन सॉल्व फॉर द कांस्टेंट फोर्सेस एंड देन एलिमिनेट दीज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम टू कैरेक्टरिस्टिक साइज. दिस इज द न्यूटोनियन अप्रोच. नाउ what we will do in Lagrangian approach? Lagrangian approach enables us to immediately reduce the problem to this characteristic size. We only have to solve for that many equations in the first place. We can use many equations at the same place at the same time. This is the some positive aspect of Lagrangian mechanics. So let's recall the recipe of Lagrangian, means the rules. These are some rules to get the Lagrange's equation of motion for any system of particles. First one is recognize and obtain the constant relations. सबसे पहले हमें constant relations को पहचानना है, उनको recognize करना है, obtain कर लेना है. Then determine that degree of freedom. हमें इसके लिए degree of freedom निकाल लेने हैं. सबसे पहले constant पहचानने होंगे, फिर हमें degree of freedom deduce करने होंगे, and then we have to choose appropriate generalized coordinates.
हमें कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चूज करने होंगे अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस भी सिस्टम में वो पार्टिकल सिस्टम है। Second step is write down the total kinetic energy and potential energy of whole system in terms of Cartesian coordinates to begin with। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में स्टार्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने होंगे। और काइनेटिक एनर्जी जैसा कि आपको ये दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं टी के लिए और वी के लिए, तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे 3 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। जैसा कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, T इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है, एंड v मीन्स एक्सीलरेशन ना। So x dot, y dot and z dot are accelerations on their particular directions and v is the potential। Then third step is obtain appropriate transformation equations। हमें एक appropriate transformation equation निकालनी होगी। जैसे कि हमें इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली हमें एक appropriate इक्वेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस चाहिए। Then fourth step is convert T and V from Cartesian to suitable generalized coordinates and generalized velocities to write L as। अब हमें L का एक्सप्रेशन चाहिए, तो हमारे पास जो T और V जिस भी फॉर्म में है उन्हें हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में डिड्यूस करना है एंड देन L में वैल्यू रखनी है, विच इज L क्या होता है हमारा Q डॉट T का फंक्शन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। And fifth step is now apply EL equations means Euler-Lagrange's equation। Euler-Lagrange's equation क्या होती है आपको अब याद हो गई होगी, d/dt del L over del Q dat minus del L over del Q equals to 0। So del Q dot J and del QJ, यहाँ जो है J वो कोई भी टोटल नंबर हो सकता है, J equals to 1 2 3 and up to n and so on। So Euler-Lagrange's equation अप्लाई करनी है। And before going further, let's see the Lagrange's equations recover Newton's second law। If there are no constraint, हमें ये देखना है कि Lagrange's equation जो है सेकेंड लॉ को रिकवर करती है कि नहीं करती। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट फ्री मोशन के बारे में। इफ देयर इज नो कांस्टेंट, अगर आपकी मोशन में कोई भी कांस्टेंट ना हो, सो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m in 3D motion under a potential v xyz, if no constant then its degree of freedom is 3। ऑब्वियसली फ्री पार्टिकल है, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं फर्स्ट लेक्चर में। एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं कार्टेशियन में xyz। हमें पता है कि L इक्वल्स टू क्या होता है T माइनस वी, और अभी मैंने आपको बताया T को लिखते हैं हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख रहे हैं v xyz। हमें Euler-Lagrange's इक्वेशन पता है d/dt del L over del Q डॉट इक्वल्स टू del L over del Q। तो हम एक बार x के लिए निकालेंगे, एक बार y के लिए, एक बार z के लिए। तो सबसे पहले हम x के लिए निकाल रहे हैं। सो del L over del x डॉट इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा mx डॉट आ गया, विच इज px, क्योंकि px क्या होता है del L over del x डॉट होता है। ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया है, आप वहां से देखिएगा। विच इज लीनियर मोमेंटम है, x की बात कर रहे हैं तो ये x कॉम्पोनेंट हो गया लीनियर मोमेंटम का। अब हम क्या करें, इसका t के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करें, तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा dpx over dt। So what is that? That is force। F equals to dpx over dt. That is Newton's second law। Obviously, when there is no constant, the Lagrange's equation recover Newton's second law। So this is important। ये बहुत important है और आपको इसे इसी तरीके से सीखना है। Now, let me try to do some examples to explain you in a better way। So this is a simple example। This is a spring mass system। ये एक प्लेन है आपका और यहां से ये रिजिडली स्प्रिंग लगी हुई है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है और इस स्प्रिंग से एक मास कनेक्ट है जिसका मास है m। एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कनेक्ट है जिसका मास है m। सो दिस इज अ सिंपल स्प्रिंग मास system। Spring is linear
and the table or surface is frictionless, so we are not considering any frictional forces here. So हमारा Lagrangian क्या होता है स्टूडेंट्स? Lagrangian is used to be L equals to T minus V. T क्या होता है? half mv square. So L equals to T minus V equals to half m x dot square minus half k x square. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम वही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं, जो हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं और अब तक पढ़ा है. देयर इज नथिंग न्यू. हमें जस्ट उन्हें निकालकर लैग्रेंजीज इक्वेशन में रखना ही है. बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी और स्पेशल फार्मूला से काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को निकाला है. सो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन वही है. स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन भी वही है. सो L इक्वल्स टू T माइनस V कर दिया. देन Lagrange's इक्वेशन, वी नो दैट द Lagrange's इक्वेशन और Lagrange's इक्वेशन इज d over dt del L over del Q dot minus del L over del Q equals to 0. So this is our L, this is our equation number 1 and we are choosing generalized coordinate x. ध्यान रखिए x क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसकी मोशन सिर्फ x डायरेक्शन में ही लिमिटेड है. ये ऐसे ऐसे मोशन नहीं कर सकता, ये आगे पीछे भी मोशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है. तो क्योंकि x डायरेक्शन में ही लिमिटेड है तो इसका जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो x ही होगा, तो हम x में ही वर्क करेंगे. नाउ डू द डेरिवेटिव्स. डेल L ओवर डेल Q डॉट क्या आया? mx डॉट आया. देन d ओवर dt डेल L ओवर डेल Q डॉट क्या आया? mx डबल डॉट आया. एंड डेल L ओवर डेल Q क्या आया? माइनस के x एंड पुट इट ऑल टुगेदर. जब हमने इन सबको रख दिया इस इक्वेशन में तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिंपल एग्जांपल फॉर दिस स्प्रिंग मास सिस्टम व्हिच इज mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0. सो दिस इज वेरी सिंपल. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए और एग्जांपल करते हैं. इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ. ये उतना सिंपल नहीं है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा उससे, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ही मूविंग कंडीशन में हैं. चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं. ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज स्लाइडिंग ऑन ए वेज ऑफ मास कैपिटल M. एक स्मॉल m मास का ब्लॉक एक कैपिटल M मास के वेज पर स्लाइड कर रहा है, यानी इसकी मोशन ऐसे है. ठीक है, समझ में आया? नाउ वेज कैन स्लाइड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल. अब ये पूरा का पूरा वेज है, ये कैपिटल M मास का जो खुद सिस्टम है ये भी एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर स्लाइड कर रहा है. इसकी मोशन इस तरफ है. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इस एग्जाम्पल में ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस पर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है जो मोशन कर रहा है और पहले वाले ऑब्जेक्ट की वजह से भी उसका मोशन होगा. सो इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझिए आप. देखिए मैंने दो डायरेक्शंस कंसीडर करी x एंड y. नाउ सपोज कीजिए इनिशियल कंडीशन पे ये जो स्मॉल m मास का जो ब्लॉक था वो यहां था. ठीक है, जब हम इसका स्टडी करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो गया, तो उसको हम q से डिनोट करते हैं. ठीक है, सपोज कीजिए ये जो आपका वेज है ये इनिशियल पोजीशन पे यहां था. ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे था. जब हम इसका मोशन स्टडी कर रहे हैं तो ये x डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हो गया है, तो इसको हमने x लिखा है. इस वेज का जो वर्टिकल हाइट है या y हाइट है वो h ले रहे हैं हम, और ये जो वेज है वो अल्फा एंगल पर इसके दोनों साइड्स जो हैं वो झुके हुए हैं. ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल आपको यहां शो हो रहा होगा और एक ट्रायंगल मैं और बनाती हूं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला. अब देखिए अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा होगा. समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो चलिए इस को हम करने की कोशिश करते हैं. So this is our diagram in a systematic way. 4 constants are there. Zm equals to 0, Ym equals to 0, Z small m equals to 0, and the one constant which is alpha, considering tan alpha which is constant. tan अल्फा हमने कैसे निकाला, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के तरीके. अगर आपको ट्रायंगल गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो आप साइन कॉस tan निकाल सकते हैं. तो आप लगाकर देख लीजिएगा, सारी वैल्यूज गिवन है. tan अल्फा आपको ये मिलेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूं. सो tan अल्फा आ गया. नाउ हम सबसे पहले इस स्मॉल m मास वाले पार्टिकल की बात करते हैं. इसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, चलिए सोचिए, मैं बताती हूं आपको. एक्स एम होगा, दिस इज x कैपिटल M. एक्स एम का मीन्स ये पॉइंट यहां है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें कंसीडर करनी है. समझ आ रहा होगा, यानी कि इस x कैपिटल M में इतनी जो डिस्टेंस है वो और ऐड करनी है आपको. क्या कीजिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक ट्रायंगल बनाइए. ये अल्फा है, मैंने आपको बताया. तो जब ये अल्फा है, ये क्यू गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्यू कॉस अल्फा आ गई, ये वाली आपकी डिस्टेंस, ऐसा निकाल सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर. तो आपके पास एक्स स्मॉल एम क्या आ गया, एक्स कैपिटल एम प्लस क्यू कॉस अल्फा. इसी तरह वाई एम निकाल लीजिए, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए. तो वाई यानी ये वाली डिस्टेंस, y यानी ये वाली डिस्टेंस, तो आप इसको भी सॉरी y यानी ये वाली डिस्टेंस ना, ये वाली डिस्टेंस y यानी, तो इसको भी आप इसी तरह निकाल लीजिए. ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, h है यहां तक, तो इसमें से ये वाली डिस्टेंस, ये जो है इतनी वाली, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, विच इज q साइन अल्फा. तो आपके पास स्मॉल m मास के पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए, x एंड y कोऑर्डिनेट्स. नाउ हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ रहे हैं. फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड चूज सुटेबल जनरलाइज कोऑर्डिनेट. तो वन पार्टिकल n इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए. नंबर ऑफ कांस्टेंट मैंने आपको बताया, देयर आर 4 कांस्टेंट हो गए 4. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 3n माइनस k, उससे आपके पास आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 2. Now the distance of the wedge from origin and distance slipped by the block Q can serve as generalized coordinates of the system. Okay, चलिए स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड आउट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस. तो देखिए वही था हमारा काइनेटिक एनर्जी T इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. तो ये तो किस लिए है, स्मॉल m मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए है. काइनेटिक एनर्जी प्लस जो हमारा वेज है वो भी तो साथ साथ चल रहा है ना, उसी पर तो वो छोटा वाला पार्टिकल रखा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा. ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, mgym. ये तो सिंपल रहेगा. अब हमें थर्ड स्टेप करना है, t एंड u को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना है. हमें x m y m की वैल्यू पता है, x डॉट m y डॉट m की वैल्यू निकाल लेंगे. जस्ट वी हैव टू डू डेरिवेटिव फॉर वन टाइम, हमें यही करना है. स्टेप 4 में क्या करना है, कन्वर्ट t एंड v इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस. अब हमें इन्हें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में ले आना है. तो यही है हमारे t और v के जो एक्सप्रेशंस थे, इन्हें हमने सिंपली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में लिखा है. एंड यू कैन सी हियर, इस तरह से हमने लिख दिया है. Q यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, Q डॉट एन, वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट. एंड mg h माइनस q साइन अल्फा विच इज ym. सो ym इज दिस h माइनस q साइन अल्फा. सो mg ym की जगह लिख दिया हमने h माइनस q साइन अल्फा. एंड दिस x m एंड y m डॉट की यहां से वैल्यूज उठाकर यहां रख दी. ओके, समझ गए होंगे आप. स्टेप 4 हो गया. स्टेप 5 में हमें लैग्रेंजियन लिखना है. L इक्वल्स टू क्या होता है, t माइनस v. सो दिस इज योर t, दिस इज योर v. Put them together here, applying a minus sign between, and we are getting L equals to half m x dot m square plus q dot square plus 2x dot q dot cos alpha plus half m x dot square minus mg h minus q sin alpha. Now we have to write down Lagrange's equation for each generalized coordinates.
तो सभी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए लाग्रांज इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक्स डॉट कैपिटल एम के लिए लिख देती हूँ। ये हमारा आयलर लाग्रांजिस इक्वेशन है। हमें क्या करना है, एक बार लाग्रांजिस को एक्स डॉट कैपिटल एम के साथ में डेरिवेटिव करवाना है एंड देन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवाना है। ठीक है, तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। यहां पर देखिए, वी आर गेटिंग दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ओके, एंड देन क्यू डॉट के लिए करेंगे, सो वी आर गेटिंग दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है डेल एल ओवर डेल एक्स एम डॉट, और यहां से हम एक्स एम डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस एक्स एम डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज दिस वन, एंड एक्स एम डबल डॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं विच इज दिस वन। So from the initial conditions given xm equals to L, xm dot equals to 0, q equals to 0, q dot equals to 0, and initially there is no momentum, so px is also equals to 0. So किसी भी और टाइम पर जब ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आगे मूव कर रहा है, उस टाइम पर हमें x डॉट और x डबल डॉट की वैल्यू पता चल गई। और इसी तरह बाकी के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हम x डॉट और x m डबल डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक कांस्टेंट x डॉट कैपिटल M के लिए मैंने आपको डेराइव करके दिखाया है। ओके, सो इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। चलिए, अब मैं आपके सामने बात करती हूँ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बट देयर इज अ स्मॉल थ्योरम जो आपको जाननी जरूरी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ फिर से रिकॉग्नाइज करवाया है आपके सामने, ताकि मैं उस थ्योरम को आपको बता सकूं। सो व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट? इफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट डजंट अपीयर इन लैग्रेंजियन, इट इज कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। लाइक देयर इज एग्जांपल, लैग्रेंजियन ऑफ अ पॉइंट मास अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर पॉइंट मास इतना होता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड। Z is nothing but y coordinate or z coordinate which we are considering usually, and since neither x nor y appear in Lagrangian, they are cyclic. Lagrangian में x and y appear नहीं होते हैं तो वो cyclic हो गए। यानी कि जब x and y appear नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम, डेल एल ओवर डेल x डॉट, डेल एल ओवर डेल x डॉट को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। इसका मतलब px कांस्टेंट हो गया, और डेल एल ओवर डेल y डॉट को भी कांस्टेंट करेंगे, यानी py कांस्टेंट हो गया। यानी ये दोनों क्वांटिटीज क्या रहेंगी, कंजर्व्ड। सो इस तरह से हम लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 2, लैग्रेंजियन फॉर अ प्लेनेट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग अराउंड द सन विच इज मास कैपिटल M। सो इसके लिए लाग्रांजिस इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती है। ये लाग्रांजिस इक्वेशन कैसे बन रही हैं, दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, उसी तरह से बनानी है, और एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी। सो इन दिस इक्वेशन थीटा डजंट अपीयर, सो थीटा इज इट्स साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ओके, अब जो मैं बात कर रही हूं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट मोमेंटम। सो दिस इज अ स्मॉल इंपॉर्टेंट थिंग। If there is no explicit dependence of L on generalized coordinate Qj, no explicit dependence of L. So del L over del Qj used to be 0. Thus Lagrange's equation corresponding to cyclic coordinate becomes this one. d over dt del L over del Q dot equals to 0. That means del pi over dt equals to 0. That means pi equals to constant. Means when we are using any generalized coordinate which has no explicit dependence on Lagrange's, then the corresponding generalized momentum used to be a constant which is called conservation of conjugate momentum. And कभी कभी ये चीजें आप इंटरव्यू में पूछी जाती हैं जब आप पीएचडी के लिए या एमएससी एंट्रेंस के बाद इंटरव्यूज के लिए जाते हैं। तो सो दीज आर सम वेरी बेसिक थिंग्स। सो हियर इज अ फॉर्म जो आपको वेबसाइट पर ऑप्शन शो होता होगा स्टूडेंट्स। तो आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं उनके लिए आप कोर्स पे रिव्यू डाल सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स में जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, आपका और कोई सजेशन है या आप क्या मॉडिफिकेशंस चाहते हैं लेक्चर में, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं।
और आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन. वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. तो गाइज डू कमेंट एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. मैं आपको बता देती हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं. हमने आज कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लिए थे अबाउट लैग्रेंजेस इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन. कल मैं आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स करवाऊंगी लैग्रेंजेस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशंस के. तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ आपको करने के लिए देंगे एज अ होमवर्क, और आप उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें भेज सकते हैं. आप वेबसाइट पर अपलोड भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें. एंड यस स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट.